یہودیوں کا پورا ہسٹری یعنی پورا اتہاس کے بارے میں کہ یہودی کون ہیں اور ان یہودیوں کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اور یہودی قوم کی شروعات کیسے ہوئی، اور یہودی قوم آخر مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے، اور ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں کون سا راز چھپایا ہوا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ اسی لیے دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ یہودی ایک ایسی بری قوم رہی ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ تو پیارے دوستوں، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ کون ہیں۔ تو پیارے دوستوں، دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، انہی میں سے بڑے بیٹے یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اس نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا جس کو آج انگلش میں جیوز کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا بڑا ہی فسادی قوم ہے۔ پہلے ہی ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ یہ لوگ حق بات کو کبھی نہیں مانتے تھے۔ یہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتل ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کے سارے انتظام بھی انہی لوگوں نے کیا۔ لیکن دوستوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن یہ یہودی قوم بہت ہی پرانی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نامی اس قوم کی شروعات ہوئی، اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے ہی جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بار لعنت کی ہے۔ اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اسی جگہ حکومت کا درجہ مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کے قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر سامنے آ جاتا ہے، آج آپ کو اس ویڈیو میں خود بخود معلوم پڑ جائے گا۔ دوستوں، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدے توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اور میرے دوستوں، ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اور اس طرح ان لوگوں نے 5 بار موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروایا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے۔ جبکہ دوستوں، ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل یعنی پرویش ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا۔ حالانکہ حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم نے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کبھی بھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی برائی کرتے رہے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था, यानी सूली पर। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में ही हो सकता है, इसीलिए वो बनी इसराइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसीलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को देते रहते थे। और यहूदी यहाँ तक कह दिया करते थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माअज़ल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती तो वो बाद में उन्हें बुरा भला भी कहते थे और बड़े दावे के साथ इस कौम के लोग कहते थे कि ये अल्लाह के चहीते हैं और जहन्नुम की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस में झगड़े भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे और ये आपस में मार काट भी किया करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों ही से निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की भी बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से हो गए। और तो और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ और बीवी के बीच झगड़े फसाद करवाते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बड़ा जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी करने की भी कोशिश की थी और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे, माअज़ल्लाह। और अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लोग एक ही बात का बार बार सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी ये काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से, हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के बताए हुए सीधे रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस जमीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया है और तो और दूसरों की बीवियों को ताक झांक करने और उनसे खुद अपनी बेटियों बहनों के साथ बदकारी, जिनाकारी करने का इल्जाम भी लगा दिया करते थे। और ऐसा बेहुदा काम करने में भी ये लोग जरा सी भी शर्म और हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फिलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदी कौम के लोगों ने ही कहा था कि ऐ मूसा, हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे, वहाँ पर आप जाएं और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह मायदा के आयत नंबर 24 में मौजूद है और कुरान पाक में एक और जगह है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और जबान पर उलटफेर इस तरह से करते हैं कि तुम समझो कि वो कुछ वो पढ़ रहे हैं कि वो किताब ही की इबारत है। और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है और एक जगह कुरान पाक में है कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतना ज्यादा थी कि वो ये भी कह दिया करते थे कि माअज़ल्लाह, अल्लाह फकीर है और हम अमीर हैं, नाउज़ बिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 181 और एक जगह कुरान पाक में मौजूद है। और नाउज़ बिल्लाह ये कहते थे कि ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरह अनाम आयत नंबर 138 में मौजूद है। कुरान पाक में एक जगह और ये है, इनमें से एक जमात ये कहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो, माअज़ल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, एक जमाना था कि ये कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत के दर्जे से ही हटा दिया। और मेरे दोस्तों, यहूदी क्योंकि कुरान पाक को भी नहीं मानते, इसीलिए इन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं और ये लोग अपने आप को आज भी अल्लाह ताला के सामने पसंदीदा समझते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा और चहेते कौम हैं। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनाम से नवाजा है, इन्हीं में से एक ताबूत सकीना भी है। तो आइए दोस्तों, ताबूत सकीना के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं कि ताबूत सकीना आखिर है क्या चीज।
ताबूत सकीना शमसात की लकड़ी का एक संदूक था, यानी एक बक्सा था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर एक एक करके आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। उसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप अलैहिस्सलाम इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक यानी बक्सा था। बनी इसराइल जब कुफार से जंग करते थे और कुफार के लश्करों की भीड़ और उनकी ताकत देखकर सहम जाते थे और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते थे, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लिया करते थे। इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और बनी इसराइल के सैनिकों के सीनों में डरते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जैसे जैसे संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से जीत की खुशखबरी नाजिल हुआ करती थी और जंगों में जीत हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई बहसबाजी पैदा होता तो वो लोग इस संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज और जीत की खुशखबरी सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला यानी जरिया बनाकर दुआएं मांगते थे, तो उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और बीमारियों की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजाना और नुसरत खुदा बंदी का नुज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में डूब गए और उन लोगों में नाफरमानी और झगड़ा फसाद का दौरा शुरू हो गया, तो उनके दुष्कर्मी और मनहूसी की वजह से उन पर अल्लाह का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जर्रार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन लोगों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को नेस्तो नाबूद कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस पाक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रुक को गंदगी के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह मुसीबत पड़ा कि ये लोग तरह तरह के बीमारियों और बलाओं के भीड़ में झिंझोड़ दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक के उन लोगों को ये यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत के बेअदबी का अजाब हम पर आ गया है। तो उन लोगों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी में रखकर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। इस तरफ फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उसी वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था। बनी इसराइल तालूत को बादशाही मानने को तैयार नहीं थे। उनकी शर्त ये थी कि अगर मुकद्दस संदूक हमारे पास वापस आ जाए तो हम तालूत की बादशाही मान लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। ताबूत सकीना पर क्या था दोस्तों? इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियाँ और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के कुछ टुकड़े, कुछ मनोसलवा, सब सामान थे। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी और बगावत की तूफान में पड़कर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान हो जाती है, उस कौम की नेमतें छीन ली जाती है। चुनांचे जब बनी इसराइल सरकश होकर अल्लाह के नाफरमान हो गए और तरह तरह की बदकारियों में पड़कर गुनाहों का भूत उनके सरों पर सवार हो गया, तो उनके जुर्मों की